शुरू हो गया।
क्या क्या था जी तो बात अपन करते हैं। चल भाई ठीक है, ओके, मैं बर्तन कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन Good evening, sir. Good evening, sir. so I've shared this third I'll be sharing two more recordings today for career for different topics. I've shared today finance and this, then I'll share design, then sociology and psychology gradually. So 2 hours discussions over different topics, right? So keep on now it is, I think, Purimaji, it is now working. Maybe when we just upload it on Drive, it takes some time to get it active, right? Now it is active, so you can go with that. Okay, so the today's discussion I kept to discuss about a different topic. Knowing child at any point of time, like today, that day Hemant was giving very good example that entire industry, whichever industry you go, everybody is trying to know you. They know the client, knowing the client. They want you to know your interest areas. They want to know your preferences, right? Through artificial intelligence, if you show your liking towards coaching, so you get to see all the advertisements of coaching. Am I right or wrong on Facebook? So they're trying hard to get to know their client through some questionnaire, through some random post they show us. We show likings, and they get to know what we like, who we are. ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है. And in this model in which we are going to work, for us it's very important to know our client, child, student. The more we know the student, their need, right, the better we can help them. I believe if you have to develop somebody, for example, if I have to develop Prabodh, the first thing I have to do is to know the Prabodh. Am I right or wrong? If you have to improve Prabodh, you need to know Prabodh first. Actually, what to improve, what to develop. So for that, assessment is going to play an important role. For assessment products, there are two prominent channels which can be used, rather three channels. Three prominent channels can be used to know someone. If I want to know Prabodh, I can talk to Prabodh and I can ask him, what are the areas which you seek that you need improvement? So Prabodh will tell me, I think I'm not so good at memory. Prabodh says, I'm struggling with concentration. I see problem in mathematics. I see problem in this. I see problem. So maybe he can tell me something about his strengths and limitations based on his knowledge about himself. Am I right or wrong? Right. And there are many things which Prabodh doesn't know about himself. Possible. Which he's not sure even about. पता नहीं, मुझे नहीं पता कि whether it is my strength or is it my average area. Possible or not, Prabodh? So maybe the first assessment tool which we have is talking, communication. और इसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? काउंसलिंग. In one sitting, you will sit a client, you will ask them, भाई आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, आपकी चैलेंज क्या है. तो मैं बिना किसी असेसमेंट टूल के भी असेसमेंट कैसे कर सकता हूँ? पेरेंट से पूछ के, by talking to child, we'll get to know, and the kind of challenge they are facing, accordingly we can pass on a solution to them. Right or wrong? But there are many things which parent doesn't know about their child. ज्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हें पता होती हैं, पर स्ट्रेंथ कभी नहीं पता होती. प्रॉब्लम वो बताएगा जो प्रॉब्लम्स ज्यादातर टेस्ट हो रही हैं, वो उन्हीं को बता पाएगा कि ये लिमिटेड है. राइट रॉन्ग? बाकी शायद उसे वो भी ना पता हो. और ये तो बिल्कुल नहीं पता कि इफ इट्स अ प्रॉब्लम हाउ टू इंप्रूव इट, ये तो नहीं पता. उसके लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन कंसल्टेंट, कोचेस, काउंसलर्स. तो एक तो है काउंसलिंग, वन चैनल. सेकंड चैनल इज काउंसलिंग में टेक गुड टाइम, और काउंसलिंग कैन गिव मी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रबोध. काउंसलिंग में कितना पूछ सकता हूं मैं अगर सेट ऑफ क्वेश्चंस ले भी आया तो फिर भी मुझे बायस्ड ओपिनियन मिल सकते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है. वो चीजें जो प्रबोध को खुद नहीं पता, ही कांट टेल मी, है ना. और प्रबोध विल बी सीकिंग सम डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, और कई चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली पूछेंगे तो गलत आंसर मिलेगा. अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन एक पूछूं, राइट, कि are you good at understanding emotions of others?
The answer is yes. आप कभी नहीं कहोगे कि मैं नो नो ना मुझे किसी के इमोशन समझ नहीं आते. Mostly will answer yes कि हाँ यार I understand others emotions, right? Are you good at understanding others emotions? या मैं पूछूं empathize करते हो आप सारे कहोगे हम empathetic हैं. I empathize with others problem emotions, right? Wrong? Direct अगर पूछा जाए, अगर ये direct question हो के indirect question, that how comfortably you get fit into new groups, how comfortably you get to know others needs, ऐसे scale दे दिए जाएं, so we'll get a different view instead of yes or no. तो दूसरा फॉर्मेट है प्रबोध को जानने का साइकोमेट्रिक टेस्ट, वेयर आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन, और ये भी नहीं कि उसका आंसर यस और नो होगा. मल्टीपल स्केल्स विल बी देयर, व्हाट ही थिंक आई एम, ही विल बी रेटिंग हिमसेल्फ ऑन सर्टेन थिंग्स. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू सम सिचुएशंस, सम सर्कमस्टेंसेस, दैट वे, राइट. साइकोमेट्री के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेज साइकोमेट्रिक की ये है कि साइकोमेट्रिक is giving me very close to those things which प्रबोध knows. वो मुझे काफी नजदीक ले जाता है उसके, जो प्रबोध को पता है. पर कुछ चीजें जो प्रबोध को नहीं पता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एम्बिग्यूटी रहेगी, और वो चीजें समथिंग which is not socially correct, उस पर भी मुझे एम्बिग्यूटी रहेगी, क्योंकि इसमें प्रबोध की अपनी बायसेस प्ले. तो साइकोमेट्री के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें लाइंग इज पॉसिबल. हालांकि इन लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक्स दे ट्राई टू डिकोड लाइंग, but it is possible. Biases are possible, so they try to minimize biases, but biases are possible, right? और साइकोमेट्री के केस में ज्यादातर दिक्कत ये आती है कि people start answering with the wrong perspective. साइकोमेट्रिक का ऑब्जेक्टिव है to know who you are, and people start answering with the perspective who they shall be. जो बड़ा important differentiation है. I given a test to Jagrati to know who she is, and she started giving answers with the perspective what she shall be. और दिक्कत ये है कि हमें कई बार कंट्रास्ट अट्रैक्ट करते हैं. What I am not, I want to be. Yes or no? What I am not, I want to be. I'm not good at meeting people. I am fascinated about sales. I look up to people, those who are very pro in connecting with others. Contrast attract. So I wish to become like them, but I'm not. तो मैं आंसर ये नहीं कर रहा कि मैं क्या हूं, मैं आंसर क्या कर रहा हूं, तो मुझे होना चाहिए. तो सारा साइकोमेट्रिक का डायनामिक्स बदल जाएंगे रिस्पॉन्सेस के, राइट रॉन्ग? Yes, absolutely. तो साइकोमेट्रिक के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं. कहा ये जाता है कि जो बेस्ट ऑफ साइकोमेट्रिक्स हैं वो 70% तक आपको नजदीक ले जाते हैं. 70% बेस्ट की बात कर रहा हूँ. 100% वाला तो कोई होता ही नहीं, 100% वाला. और 70-75 तक मैक्सिमम यू कैन फेच एक्यूरेसी आउट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट. और दूसरी चीज, साइकोमेट्रिक कैन बी अप्लाइड ऑन समबडी हु नोज हिमसेल्फ एंड हु इज इन पोजीशन टू आंसर फॉर सेल्फ. तो एज ब्रैकेट कौन सी हुई? 13 एंड अबव मोस्टली. साइकोमेट्रिक्स आर ऑब्जेक्टिव ड्रिवन. ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होते हैं. जस्ट अ मिनट. So what I was talking about that it is objective driven, right? There's always an objective to build a psychometric test. Sir, initially, if I remember, when we had done the training in June, July, you mentioned that psychometric can be done on 10 plus age group kids. वही बता रहा हूँ, 10 नहीं, 11, 12 plus. 12. वैसे कुछ different type tools हैं available which can be applied on this. Just a minute.
Okay. So yes ma'am, what you were asking, 10 साल का ना, depends on different tools. Psychometric वैसे ऐसे भी हैं जो अभी बहुत young बच्चों के लिए भी they've started using psychometric, but problem ये है कि 8 years old child is not that mindful about answering for self. Lot of things they don't know. So एक basic information you want to know, so it is okay, but if you want to have a detailed info, very close to reality, if you want to have something, definitely a child has to be that conscious about, right? 13, 14 will be a fair age to use a psychometric for child, right? Tools तो बहुत छोटे छोटों के लिए भी हैं, but वो हमें इतनी fair figure नहीं view नहीं दे पाए, right? So psychometric is another approach. Psychometric different objective. If I can use a psychometric to know your accountability level, I can use a psychometric to know your stress level. I can use a psychometric to know your integrity level also, up to an extent, not clarity. But yes, for these reasons, it's been used in corporate, in psychology, right? Positivity, negativity to map that way. And even for personality profiling, for learning style, these psychometrics can be used. And there is a third tool, third approach to know the child, if you have heard about it, that by knowing your biometrics, right, I can get to know about you. If I see your biometric fingerprints, right, we can get to know about you. Now I won't say that it talks about everything, because it is not objective driven. It's not like psychometric that we can design it the way we want, with the objective which we have. This definitely have a limited view about an individual, but whatever view have, this view is based on a science called dermatoglyphics. Dermaglyphs. On your skin means derma, all the glyphs means designs, carvings, which are there. They speaks a lot about your nature, your inborn traits, right? Your skin designs, which are available mostly on your palms, your fingertips, and your soles. There are certain designs God has gifted you, right? If you notice, it's on your palm, it's on your fingers, it's on your soles. Those carvings are made, right, with a process which is connected to our brain development at the time of making of brain, means in mother womb, right? I'll explain this concept in detail to you, but somehow this carvings, if we start decoding these carvings, if we learn how to decode, it speaks a lot about humans' inborn traits, their personality, their lot of things that you will get to know, mostly about your potentials, about your even the way you look at things, acquire belief, your belief style and everything. A lot of things get clearer even without asking a single question from an individual. Means if I don't know you, like most of us know each other, huh? I know at least you, you know me. Even if I don't know you, even if I can't see you, if I have your biometrics, I be 80-85% close to your personality, who you are, your strengths. A lot of functional areas I can get to know which function you are great at, which function you are not good at, even if I haven't seen you. मुझे पता ही नहीं कौन हो आप, तो भी, even if I don't know your age, still I can tell you. So this is science, but means at the time of development of these carvings, some coding has happened, and the science helps us to decode that codes. And in this next 6 to 8 days training, which I'm going to start, I help you to decode it. You learn how to decode it. And once you learn this art, this is amazing art. If you learned it, मुझे नहीं लगता कि आप उसके बाद कभी इसको छोड़ो. It's very powerful, because I need not to ask a single question from you. And it's not astrology anymore anyways, right? I'll tell you what it is, how it is, but these patterns which we have on our body, that speaks a lot about ourselves. How?
what this science is, how it is validated, I'll explain more. Right? There are a lot of people that are working in this domain. Right? Already you may have heard about it. Have you? How many of you heard about it? Suna kisi ne? There is somebody who takes biometrics and speaks about your potential and all. Like everybody is born with a specific fingerprint, and that's been used in forensic science. That much we know. That's it. That much we know. So you may mostly know about that, the uniqueness of these Yeah. fingerprints, Anna. True that. What I'll do, I'll take you. And I think those people who are doing whole brain mapping are also probably using this. Like they use a different terminology for that. The primarily this science is called dermatoglyphs, right? And this process is called dermatoglyphics. The science is called dermatoglyphs, and the process is called dermatoglyphics, right? So if we go with the word, right, dermatoglyphics, this means if you go into Wikipedia, go for the definition. If you go with the medical definition in medical science, it means skin carvings, dermaglyphs. Derma means skin, glyph means carvings. So the scientific study of skin carvings is called dermatoglyphics. अब ज्यादातर ये skin carves जो हमें मिले हैं body पे, वो जो glyphs मिले हैं, designs मिले हैं, it's been available on hands and soles. Hands and soles पे we have designs. जब इसके ऊपर research हुई है, तो by default because of some comfort and ease, ये सारी research hands पे हुई है. Soles पे बहुत कम research हुई है, rather हुई नहीं research. Soles पे भी pattern है, but उसके ऊपर कोई research नहीं हुई. क्योंकि अगर मैं research करने जाऊं तो मैं यही बोलूंगा प्रपोज जरा अपना हाथ दिखाओ, मैं ये तो नहीं कहूंगा अपना पैर दिखाओ. Just for the research purposes, to identification and all. तो soles पे ज्यादा research हुई नहीं. ज्यादातर जितनी research हुई है, that has been done in the field of in the field of dermatoglyphics on hands. Hands पे भी दो तरह के patterns हैं. एक pattern है हमारे यहाँ palm पे, बहुत lines हैं, designs हैं palm पे. और palm print is not permanent in nature. You know that? आपको पता होगा ये finger ये lines मतलब हल्की that थोड़ी गाढ़ी और धीरे धीरे बार खत्म भी हो जाती हैं. Yes, you know that? Yeah. और कभी भी ये नहीं कहा जाता कि handprint is making you unique. It is fingerprints which you make unique. ये जो top tip पे है, ये tip है, top जो tip है इसी के अंदर है ये पूरी finger पे नहीं है. It's on top tip. इसी में बनता है, इसी में खत्म हो जाता है, इसके beyond नहीं जाता. Top पे. And how many fingers we have in hands? 10. 10. So 10 fingerprints, and each fingerprint is unique from each other. Like that, we know. God has given us different fingerprints. ये तो identification purposes से हो गया, to identify someone, right? Okay, that they have a different this fingerprint. But when it comes to this, what it speaks about, मैं इसका आपको premise बताता हूँ. ये science तो this word got coined in medical science in 1926, 27, I think this time 1928 type. उस समय ये word actual में coin हुआ dermatoglyphics. Dr. Harold Cummins हुए हैं, those who is known as father of dermatoglyphics. He is the one who brought this word to the medical science. और इसका premise जो earlier used medical science में हुआ. It was not used in psychology earlier. It was used in medical science only. Right? Or the term got coined in this approximately 100 years ago, but ये concept पुराना था. अगर modern science की बात करो, modern science ने इसके ऊपर जो research शुरू कर दी थी वो 1641 से शुरू हो चुकी. There are a lot of books which are available from 1600. 1600 कुछ, ये modern science की बात कर रहा हूँ. पर अगर मैं modern science की बात ना करते हुए, if I talk about this, whatever we can take it back with the basis of on the basis of the history of each the civilization. I'm sure you can connect it to that when way back 1000 years ago, whenever there were some certain agreements between some royal people, some kings and all, जितने भी agreements हो रहे थे 1600 से भी पहले 1000 years ago, वो agreements में you must have seen क्यों नहीं वो thumbprint लेते थे identification के कि प्रबोध एक राजा, मनीष एक राजा thumbprint देते थे, mostly on clay or some
वो ज्यादातर प्रिंट्स लिए जाते थे कुछ उस पे व्हाट यू कॉल इट दिस लीव्स पे, या लीव्स पे उसे प्रिजर्व किया जाता था या क्ले पे, राइट? प्रिंट लिए जाते थे उस समय। इसका मतलब उस समय भी उनको पता था कि जो पैटर्न है ये यूनिक है सबका, उन्हें कोई मॉडर्न साइंस ही नहीं बताया था। इवन इन दैट टाइम दे वर अवेयर दैट माय प्रिंट इज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रिंट और हर प्रिंट, ये तो क्लियर था। और इफ अगर आपका किसी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट माइथोलॉजी में भी है, अलग अलग सिविलाइजेशंस में इसके बारे में पहले से ही बात हो रही है, उनकी सिविलाइजेशन में, चाइनीज सिविलाइजेशन में, इवन ग्रीक में भी। और अगर आप इंडियन के हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो तो आपने सुना कि एक शास्त्र हुआ समुद्री शास्त्र, अभी भी अवेलेबल है समुद्री शास्त्र, यू नो दैट? एनीवन हर्ड अबाउट इट? समुद्री शास्त्र ने हमारी बॉडी के बारे में, लाइक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत बात की है। एंथ्रोपोलॉजी, यू नो, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस बॉडी, राइट? तो समुद्री शास्त्र ने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत बात की है। एंथ्रोपोलॉजी तो वर्ड बाद में आई है, समुद्री शास्त्र बहुत पुराना है, उसने बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताया, राइट? जैसे एक कुछ टर्म्स हम सुनते आए हैं कि जिसकी उंगली ये बड़ी हो उसका ये होता है, जिसकी आंखें बुरी हो, जिसकी भवें ऐसी हो, है ना? ये बॉडी के बारे में ऐसी कुछ, है ना, चीजें। तो वो काफी हद तक अलग अलग फील्ड से आई थी। समुद्री शास्त्र ने काफी कुछ बोला है। तो समुद्री शास्त्र ने कुछ फिंगरप्रिंट्स के बारे में बोला। वे बैक हिस्ट्री इट्स बीन रिटन के दशम चक्र जिसके होते हैं, चक्र होते हैं, सर्कल्स, वर्ल्ड्स बने होते हैं क्या फिंगरप्रिंट्स में, उसे राजयोग मिलता है। उस समय बोला गया था राजयोग मिलेगा जिससे, जिसके 10 शंख होंगे वो बड़ा शांति प्रिय आदमी, योगी बनेगा वो। दिस टाइप ऑफ, मतलब उस समय के हिसाब से जो उस समय रूल्स थे उसके हिसाब से उन्होंने रूल्स में डिफाइन किया। So what happened when this modern era scientists started working on based on these mythological books and civilization में जो अलग अलग लिखा हुआ था, they started finding out कि ये भाई क्या मतलब है इसका? How can a fingerprint speaks about somebody's fate, or even if it's not fate, if it is talking about the attitude, अगर हम कह रहे हैं कोई राजा है तो राजा एक एटीट्यूड है, being king is attitude, है ना? ज्यादातर जो राजा बने हैं आज तक वो कभी मांग मांग के तो बने नहीं, ऐसे बने थे कैप्चर करके उस समय, राइट? तो जस्ट अ मिनट, बैकग्राउंड नॉइस है कोई। तो व्हाट दे फाउंड कि इस समय दे स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट कि अगर किसी के पैटर्न्स में ये प्रिंट है तो हाउ कम इट इज सेग्रीगेटेड एज अ डिफरेंट बिहेवियर। और अगर हम कह रहे हैं कोई किसके शंख ज्यादा वो योगी है तो उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दे आर पीस लवर पीपल, राइट? माइल्ड एंड वेरी कूल इन देयर लाइफ, काम लवर। व्हाई? इफ फिंगरप्रिंट स्पीक्स अबाउट अ बिहेवियर and behavior is an outcome of your neuron, this function, right? Behavior and function is outcome of your neuron function, your cognitive development। तो इसका मतलब कोई ना कोई लिंक फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन में रहा होगा, ये प्रेमाइस थी इस रिसर्च की। एंड दे स्टार्टेड रिसर्च। उसके बाद मैंने आपको ये जो फैक्ट्स दिए हैं ये सारे हिस्ट्री में अवेलेबल हैं, कब कब किसने किसने किस किस टॉपिक पे रिसर्च की। एंड 1832 में एक फेमस सर्जन थे चार्ल्स बेल, he actually found first time the neurological link between fingerprints and brain. He found it, but he was not succeeded in terms of showing the clear picture of it, क्योंकि ये neurological link fingerprints और brain में उसने establish किया था at the time of development of fingerprints and brain, which happens in the mother's womb। तो कोई स्कैनर लगा के चेक नहीं कर पाए कि क्या कनेक्शन, तो establish नहीं कर पाया वो, और उसने लिंक फाइंड आउट कर दिया था। he wrote a lot about it। 1893 में सर फ्रांसिस गैल्टन थे। आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आपने कईयों ने जिन्होंने एंथ्रो पढ़ी है, एंथ्रोपोलॉजी, राइट? इफ यू हैव स्टडीड समथिंग अबाउट जीनोलॉजी, तो अब सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम बहुत बड़ा है, तो लॉट ऑफ रिसर्चेस आर ऑन दिस। इन्होंने जेनेटिक्स के साथ ऐसे कनेक्ट किया कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, इवन उनके फिंगरप्रिंट्स उनके बारे में बताते हैं, जीन्स के बारे में, राइट? डीएनए, जीन्स, ऑल दिस। और फिर somewhere in the year 26, this fellow Dr. Harold Cummins, he succeeded to establish it।
उसने उसके बाद भी काम किया अपनी टीम के साथ, चार्ल्स मिडलू, राइट, 1936, 1994, they brought a lot of stuff and he proved that there is very established, well established connection between development of fingerprints and development of brain. मैं समझाता हूँ आपको कैसे. कुछ बुक्स भी मैं रेफर करूंगा आपको, you can find out these books, right, which speaks about it. Researches I'll share. तो मींस ये 1985 तक चलती रही रिसर्च, उसके बाद इस पे पैसा लगना बंद हो गया. ये रिसर्च पे पैसा लगना बंद क्यों हुआ, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ. क्योंकि जब ये जो मेडिकल साइंस में इसका यूज हो रहा था, किस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को. एनी जेनेटिक, जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस थी उन्हें वो मैप किससे करते थे, फिंगरप्रिंट से. डाउन सिंड्रोम सुना आपने, डाउन सिंड्रोम हो गया, some genetic problems related to this tuberculosis, right, cancer, which are genetic problems. जितनी genes के साथ, even there has been research made on type 2 diabetes also. जितनी genetic problems उसको वो किससे मैप कर रहे थे, फिंगरप्रिंट से, मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में. तो ये इसकी जरूरत खत्म हो गई इस तरीके की जब डिजिटल जेनेटिक टेस्टिंग आ गई, और उसे क्या बोलते हैं हम, डीएनए, डिजिटल डीएनए टेस्टिंग. ये कब आई, डिजिटल डीएनए टेस्टिंग कब आई थी वर्ल्ड में, 90s में. 90s में आने के बाद फिंगरप्रिंट्स की जरूरत खत्म हो गई. उससे पहले जितने बच्चों को, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को उन्होंने डिफाइन करना होता था डाउन सिंड्रोम, तो उनके पास जो टेस्ट अवेलेबल था वो था बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक से वो डिफाइन करते थे कि दिस चाइल्ड इज डाउन सिंड्रोम, राइट, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी. और जैसे ही डीएनए टेस्टिंग आई, इसकी जरूरत खत्म होगी, तो मेडिकल साइंस ने इस पे पैसा लगाना बंद कर दिया. देन दिस बीन पिक्ड अप बाय साइकोलॉजी रिसर्च. आज रिसर्च के लिए तो आज भी इस पे पैसा नहीं लग रहा, बट जितनी है वो बहुत हुई है रिसर्च. अभी भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, राइट. लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज लिंक्ड बिटवीन बोथ fingerprints or brain, how it is linked, because a lot of apprehensions are there about it. ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया 2009 में, 2008-9 में इंडिया में आया. 2008-2009 में बिजनेस की तरह आया, नॉट एज अ साइंस, बिजनेस की तरह. साइंस तो बहुत पहले इंडिया में आ चुका था. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोस आर वर्किंग इन द साइंस फ्रॉम इवन 1989, 1988, इंडियंस जिन्होंने बहुत रिसर्चेस की हैं, राइट, जो 1989 से उनके रिसर्च पेपर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट, कई यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर पेपर सबमिट किए हुए इंडिया से. बट एज अ बिजनेस कब आया, यहाँ पे कमर्शियल फॉर्म में आया 2008-2009 में, जब किसी बिजनेसमैन ने इसे ब्लेंडेड फॉर्म में एक प्रोडक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया टू असेस इंडिविजुअल, टू असेस चाइल्ड, राइट. पर एज अ साइंस ये बहुत पहले ही आ चुका. दीज आर सर्टेन बुक्स व्हिच आर देयर which can be studied, जो मैं बता रहा हूँ आपको, which I'm explaining. So very detailed, these beautifully explained. So you can have these books. अब मैं जो concept आपको समझा रहा हूँ वो समझना है एक बार. Fingerprints ये जो बने हैं, ये स्किन के ऊपर बने हुए डिजाइन नहीं है. ये नीचे से ऊपर की तरफ स्किन ये आ रहे हैं डिजाइन. चेक, जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो स्किन है, ये स्किन के ऊपर डिजाइन नहीं है, ये स्किन के नीचे से बनाया हुआ डिजाइन है. मींस अगर मेरी ये स्किन यहाँ से उतर भी जाए, कई बार होता है ना हमारे सर्दियों में स्किन उतर जाती है, कई लोगों के होती है ना, या मेरे कोई चोट लग गई एंड स्किन इज, ये दोबारा आई है स्किन, तो प्रिंट बदलेगा नहीं, प्रिंट विल रिमेन सेम. दैट मीन दिस प्रिंट इज नॉट ऑन द आउटर स्किन. ये एपिडर्मल की जो हमारी डर्मल थर्ड लेयर है उसके ऊपर होता है, उससे ऊपर की तरफ उभरा हुआ डिजाइन, जो हमारी स्किन लेयर्स है ना, तो ये थर्ड लेयर होती है जिससे स्किन जो उभरी है और उसके ऊपर 2 लेयर्स और है. तो मींस अगर मेरी 2-3 लेयर्स भी थर्ड लेयर डैमेज होगी तब जाके ये पैटर्न डैमेज होगा. अदरवाइज यूजुअल वे में अपर 2 लेयर्स के साथ इससे कोई पैटर्न में नुकसान नहीं होगा. जब भी वो स्किन दोबारा आएगी द पैटर्न विल रिमेन सेम. तो ये डेवलप कब होता है फिंगरप्रिंट, इट गेट डेवलप्ड इन मदर्स वूम ओनली. एक बार बर्थ के प्राइम पे जो पैटर्न आ गए, टिल डेथ इट विल रिमेन सेम.
आप बिल्कुल इन्फेंट 1 year old चाइल्ड के ले लो, उसके थ्रू आउट द लाइफ दिस प्रिंट विल रिमेन सेम। जो पैटर्न डेवलप हुआ वो कब हुआ है? ना मदर वोम, राइट। और ब्रेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि आफ्टर बर्थ कोई भी न्यू न्यूरॉन डेवलप नहीं होता। मैं आपको ब्रेन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक दिन हम ब्रेन को डेडिकेट करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने ब्रेन के बारे में पहले पढ़ा होगा, आई एम श्योर। हैव यू एनीवन? थोड़ा बहुत न्यूरो साइंसेस के बारे में। हमारा ब्रेन इज मेड ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स कहते हैं उसे, ब्रेन सेल्स। एक बार जो ब्रेन सेल हमारे बन गए, वो कम तो हो सकते हैं, बर्थ के बाद बढ़ेंगे नहीं। यू नो दैट? सुना आपने? नो सर। एक बार जो हमें तो कहते थे ना कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिले हैं, वो कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। बढ़ने के लिए ट्रांसप्लांट एंड ऑल आजकल बड़ा शोर शराबा है, पर फेयरली अभी तक कोई भी एस्टैब्लिश कोई प्रोसेस नहीं है जो हमारे सेल्स को, ब्रेन सेल्स को रिप्रोड्यूस करे। नए सेल्स नहीं ऐड कर सकता, जो हैं वही हैं, उनको यूज कर सकते हैं। कुछ डोरमेंट हो चुके हैं एक्टिव कर सकते हैं, पर हम काउंट नहीं इंक्रीज कर सकते। काउंट कम जरूर हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमें गिफ्ट मिल गया वो कब मिला है? विद इन द वॉर्म। जितने ब्रेन सेल्स पोर हुए हैं वो विद इन द वॉर्म ही हुए हैं पोर, राइट। अब इस प्रोसेस को समझो। So it's not that till the age of 8 it is still formed. That is only brain developing. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो मैं ब्रेन समझाऊंगा। शायद आपको अगर यू रिकॉल द मिड स्कूलर प्रोग्राम एक्सप्लेन, वो नर्व सेल्स नहीं बढ़ रहे, नर्व सेल्स Synapses बढ़ रहे। synapses, absolutely right. Which is the same as neuroplasticity as people are talking about now. Absolutely, that's neuroplasticity. Neurons connection between one to another neuron, that is neuroplasticity, which is also called as this neurological connections. It is also called as synaptic connections, right? Synapse, right? Neurons can be use it or lose it. Absolutely, you can't increase it. You can use it or you keep losing it. और losing के केस में भी खत्म नहीं होते न्यूरॉन्स, it get dormant, inactive. You have to make it active. तो पहला पॉइंट ये समझने वाला है कि ये दोनों चीजें बन कब रही हैं मदर वॉर्म में। अब एस्टैब्लिश भी कनेक्शन वही किया होगा साइंटिस्ट ने। कैसे किया? आई टेल यू। पहले तो उन्होंने इसको, जो फीटस में जो डेवलपमेंट है फीटस की, उसमें उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, राइट। तो फीटस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो होती है 10 to 12 वीक्स के बाद। जब हम ये कहते हैं कि आपने मतलब टिपिकल वे में सुना होगा, these gynecologists they say that now उसकी धड़कन शुरू हो गई, बच्चे में लाइफ आ गई, कहते हैं ना। आफ्टर 2 months 2.5 months उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। we say this, ऐसी क्या सुना ना आपने डॉक्टर से? फैक्ट भी यही है, राइट। और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, पर जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो शुरू होती है धड़कन शुरू होने के बाद, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन शुरू जब होगी, पंप होना शुरू होगा। पंप किसने करना? ब्लड फ्लो ने, राइट। शुरू में तो फ्लो कहां से मिल रहा है आपको? मदर एनर्जी से। तो तब जाके ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है। तो जब जैसी आपकी, जब कहते हैं ना बच्चे की लाइफ आई, इसमें धड़कन शुरू हुई, ऐसे ही आपके ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है। तो पहले 10 to 12 वीक्स में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, ब्रेन इज नॉट देयर। अगर कोई फीटस की जो अबॉर्ट होते हैं या प्री डिलीवरीज, कोई ऐसे केसेस हो जाएं मिसकैरेज के, तो जो फीटस है इट डजंट हैव ब्रेन, राइट। तो ये तो क्लियर है कि पहले उस टाइम में ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। और वो जो फीटस है उसके हैंड्स पे आउटर स्किन आई नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप नहीं हुए होते। बट अगर कोई मिसकैरेज या अबॉर्ट 4 महीने के बाद हो रहा है, राइट, तो वहां ब्रेन ट्रेसेस भी होंगे, फिंगरप्रिंट्स के ट्रेसेस भी होंगे, नॉट फुली डेवलप्ड बट इट विल बी देयर। क्लियर? अगर ऐसे कई केसेस होते होंगे, मिसकैरेज हो गया, कभी अबॉर्ट हो गया, कुछ फीटस 4 महीने के 5 महीने भी, तो उन्होंने जब देखा तो दे फाउंड कि उसमें ब्रेन भी है, ब्रेन ट्रेसेस भी हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी और फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो ये शुरू कब हुआ? 2.5 महीने के बाद, 10 वीक्स के बाद या 10 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद।
और ये ब्रेन साइज ग्रो करता रहेगा और फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते रहेंगे टिल 26 to 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 7 महीने से 7.5 महीने। ठीक है, ये होता है ना 7 मंथ्स के बाद हम कहते हैं ना कि अगर वो भी हेल्दी है, सही, या तो 7th या 9th जो भी जो उसका प्रोसेस है, तो इस वीक में ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होती है और फिंगरप्रिंट्स भी साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, न्यूरॉन्स जो डेवलप होते हैं, तो मैं ब्रेन वैसे शेयर करूंगा आपसे, पर आपने अगर सुना हो दैट देयर इज अ स्पार्क इन द ब्रेन व्हेन न्यूरॉन्स वर्क, देयर इज अ स्पार्क है, इलेक्ट्रिसिटी। कहीं सुना आपने जैसे कोई रैंडम थॉट्स होते हैं, हालांकि वो सही है कि एक ब्रेन में इतनी ताकत है कि वो बल्ब जगा दे, इतनी एनर्जी उसमें, इलेक्ट्रिसिटी है ना, सुना होगा। हालांकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बल्ब जगाने वाला, बट शोज दैट लॉट ऑफ स्पार्क इज देयर, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, क्योंकि हमारे सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी स्पीड पे चलते हैं एंड देयर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स वर्किंग इन आवर ब्रेन, तो इलेक्ट्रो सिग्नल्स के कारण भी कॉल है। तो जब भी जब न्यूरॉन पहली बार बना है, देयर इज अ स्पार्क, और जो स्पार्क का जो एग्जॉस्ट पॉइंट है वो ये फिंगरप्रिंट्स, ये टॉप पॉइंट्स, जो स्पार्क है उसका एग्जॉस्ट है ना, कानों के उस समय छेद बंद होते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो अभी जो भी मैं बोल रहा हूं, मैं अगर आप मेरी जगह बोल रहे हो अगर 2 घंटे लगातार, तो ब्रेन में बहुत स्पार्क हो रहा है, राइट, बहुत स्पार्क हो रहा है, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी आंखें या कान या यहाँ से गर्माइश निकलती है। यस और नो चेक होता है ना, हीट जो प्रोड्यूस होती है, इट्स अ रेजिडुअल ऑफ स्पार्क, जो स्पार्क है उसका रेजिडुअल है, क्योंकि उसके लिए आपके पॉइंट्स आर ओपन, बर्थ मदर वॉम में पॉइंट्स आर नॉट ओपन, तो इट इज जस्ट लाइक कि आपको हम एक टोंटी के ऊपर अगर कोई पाइप लगा दें और मैं उसे ओपन कर दूं, तो अगर उसका लास्ट सिरा बंद होगा तो क्या होगा, इट विल बर्स्ट समवेयर, या कहीं ना कहीं से छेद करेगी वो। सेम वे जो स्पार्क था, उसे उसका जो आउटकम थी, दैट केम एज पैटर्न्स डिजाइन, राइट, दैट्स अ बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस। हालांकि इसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे किया मैं वो बताता हूँ पहले आपको। तब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हुआ वैसे वैसे फिंगरप्रिंट्स डेवलप हुए। अब ये इन्होंने बता तो दिया, प्रूव करना मुश्किल था, क्योंकि देयर इज आज तक भी ऐसा कोई स्कैनर नहीं बना जो प्रेग्नेंट के यहाँ लगा दो और बता दिए जी एक ये ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक ये फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो उस समय क्या हुआ, एक 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 रिसर्च की गई उन लोगों पे, those who got accidentally or because of certain reasons, those who got problems with their brain, या इनबॉर्न या एक्वायर्ड, राइट, या इनबॉर्न उनकी ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप हुआ, या आफ्टर बर्थ एक्सीडेंट के कारण कुछ केसेस हो, राइट, या एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं जो पता ही नहीं चलते किसी को, है ना, कहीं किसी के कॉर्ड गले में फंस गई, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन आधा डेड हो जाता है इमीडिएटली, तो आपको पता नहीं चलता कि इनबॉर्न है या आफ्टर बर्थ एक्सीडेंट के कारण। तो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए उन लोगों पे जिनके ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे, और स्पेशली डाउन सिंड्रोम केसेस। तो देन दे फाउंड people those who have lesser developed brain, even their fingerprints are abnormal, the fingerprints are not properly developed। अब समझ आई, अब सुनना ध्यान से। तो पहली इसको ब्रेक थ्रू किसने कब मिला, जब उन्होंने कोई 500 से ज्यादा केसेस वो उठाए जिनके ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे। अब जिनका ब्रेन हाफ डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है, जिनको न्यूरॉन्स गॉड ने कम दिए हैं, कुछ फंक्शनल एबिलिटीज नहीं है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो जी नहीं सकते, वो जी सकते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, पर उनकी एफिशिएंसी सही नहीं है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी सुना आपने, सीपी कई केसेस में इनबॉर्न भी होती है, सीपी एक्वायर्ड भी हो सकती है, दोनों केसेस में हो सकती है, ज्यादातर इनबॉर्न है। तो वो बॉडी क्लियर नजर आता है कि वो उसकी बॉडी मतलब उसकी मसल्स, उसकी सारी एनर्जी, उसकी बॉडी का भार या कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। ऐसे कई केसेस नजर आते हैं जहाँ ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, ना सोचने के लिए, ना इमोशनली, राइट, ना स्पीच के लिए डेवलप हुआ है, कभी बॉडी उसके लिए अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो उन केसेस में दे फाउंड कि उन लोगों के फिंगरप्रिंट भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। तो पहला ब्रेक थ्रू ये मिला, समवेयर दे शोन दैट फिंगरप्रिंट्स आर कनेक्टेड समवेयर टू ब्रेन, बिकॉज अगर उसकी ब्रेन एफिशिएंसी हाफ है, अच्छी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं उसका फिंगरप्रिंट्स पे भी उसका इम्पैक्ट है। तो ये पहली चीज ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद ये आउट ऑफ रिसर्च नहीं था, ये आउट ऑफ एक्सीडेंट एक क्लैरिटी और मिली उन्हें। एक और स्टेट होती है, इट्स नॉट ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्टेट है। मदर वॉर्म में जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, ये ध्यान से देखना, मेरा कर्सर देखना, ये जो देख रहे हो आप ऊपर स्कैल्प बोन, ये गोल जो ले रही है, ऐसे गोल बन जाती है ना हमारे ऊपर, ये बोन होती है। कुछ केसेस में मदर वॉर्म में ये बोन डेवलप नहीं होती, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। फॉलिक एसिड रहते हैं ना मदर्स को, फॉलिक एसिड के कारण ये बोन डेवलप नहीं होती। और अगर ये बोन डेवलप ना हो तो ये जो ब्रेन है इसको साइज गेन करने का मौका नहीं मिलता, ये ब्रेन के लिए जगह ही नहीं बनी। अगर ये फ्लैट हो जाए यहाँ से तो ये गुलाई वाला शेप मिलेगा ब्रेन को, फ्लैट हो जाएगा ना वो। अगर वो फ्लैट हो जाए तो उसका कॉर्टेक्स तक को जगह नहीं मिलती, जो इंटरनल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसकी हुक को भी जगह नहीं मिलती अपनी जगह बनाने के लिए। तो मास इसे यहीं बंद कर देता है, ऐसी कप पैक कर देता है। उस केस को बोलते हैं अपना एनेंसीफली, अनेंकीफली भी बोलते हैं। सी है, कोई इसे डिफरेंटली प्रोनाउंस करता है, ANENCYPHALLY। इसे गूगल करना, आपको ऐसी पिक्चर्स बहुत दिखेंगी। ज्यादातर थर्ड वीक की जो थर्ड मंथ के बाद जो डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं आपको कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं, सारे ऑर्गन्स पूरे हैं कि नहीं। और अगर ये केस हो तो वो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करने के लिए सजेशन देते हैं। और ज्यादातर ये पता कब चलता है? थर्ड मंथ के बाद, क्योंकि उसी समय ऑर्गन सारे प्लेस होते हैं। तो देयर इज, वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज नो फन कैरिंग ऑन विद दिस प्रेगनेंसी। रीजन ये है क्योंकि इनकी लाइफ ही नहीं होती, दे कांट लिव। बिना ब्रेन के आपको बॉडीली इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी, इवन ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूरी होगी, राइट? तो कई इंस्ट्रक्शन, बॉडीली इंस्ट्रक्शन ही नहीं बन पाएंगी, तो दे डोंट लिव मच। 6 घंटे, 8 घंटे, 2 दिन मैक्सिमम, डिफरेंट केसेस, डिपेंड्स, इतनी इनकी लाइफ होती है। तो ये डिलीवर होते भी हैं कई बार, क्योंकि कई हमारे आज भी ऐसे कई कंट्रीज हैं, कई हमारे इंडिया के स्टार्टर्स हैं जहां पर कोई स्कैन नाम की चीज नहीं है ना, तो वहां डिलीवरीज होती हैं। एनेंकीफली की डिलीवरीज आज भी होती है, राइट? पहले तो होती थी, आज भी होती हैं। अगर आप ऐसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जानते हो जो जिसकी प्रैक्टिस 12-15 साल की है, तो उसने 1-2 केस डिलीवर किए होंगे। हालांकि आजकल के जो मॉडर्न एरा के डॉक्टर्स हैं वो बिना कभी स्कैन के आजकल डिलीवरीज नहीं करते, तो उन्हें पता चल जाता है क्या केस। डिलीवरी हार्डली कोई डिलीवरी तक केस पहुंचता है, राइट? बट अगर उन केसेस को जब अगर डिलीवर हुए हैं तो रिकॉर्ड सेज उनका ब्रेन नहीं होता, उनका ब्रेन नहीं होता, बिना ब्रेन के जन्मते हैं। उनके फिंगर्स होते हैं पर फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। they don't have brain and they don't have fingerprints। और जिनके पास लेसर डेवलप्ड ब्रेन है उनके पास लेसर डेवलप्ड फिंगरप्रिंट्स है। ये दोनों चीजें प्रूव हुई, तो इसको प्रीमाइसली 1926 में, I'm talking about 60s में, when they talked about it, clear? तो ये इसकी ये जो जेस्टेशन पीरियड है, राइट, उसको ये हाईलाइट कर रहा है, कैसे फॉर्मेशन होती है रेमेडोग्लाइफ्स की, ब्रेन की fully developed fingerprint। Somewhere it is established that fingerprints have lot to do with development of brain। और ये कम से कम ये बताता कि गॉड ने ब्रेन में क्या पोटेंशियल दिया है, क्योंकि उसके बाद कितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं उसका ब्रेन फिंगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं। वो तो एक बार ब्रेन जो मिल गया उसको यूज कैसे कर रहे हो, कम ज्यादा, उसका फिंगरप्रिंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए ये फिंगरप्रिंट्स आपके पोटेंशियल को बताते हैं, आपने कितना पोटेंशियल यूज किया कि नहीं किया वो नहीं बताते। तभी मैंने बोला आपको एक लिमिटेड व्यू है इसका, पर जितना व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। मनीष शर्मा को हो सकता है गॉड ने किसी एक एरिया में पोटेंशियल दिया हो, पर मैंने उसे कभी यूज ही नहीं किया, मैंने उस एरिया में लर्निंग ही हासिल नहीं की, आई हैवंट लर्नड दैट पार्ट। तो हो सकता है फिर मेरे पे गॉड ने पोटेंशियल तो दिया था पर मैंने उसे यूज नहीं किया। तो आज अगर मेरा फिंगरप्रिंट्स का कोई एनालिसिस करवाया जाए तो मुझे वो एनालिसिस क्या बताएगा? मेरी पोटेंशियल्स को। क्लियर? नॉट अबाउट माय यूजेज एंड एक्वायर्ड एरियाज। ऑल सेट? तो एक्वायर्ड को जानने के लिए साइकोमेट्रिक इज बेस्ट, और इनबॉर्न ट्रेट्स को जानने के लिए बेस्ट टूल इज दिस। और अगर आप किसी, हाँ जी जी प्रियंशु, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। यानी कि जब बच्चा मींस
पैदा होता है चाहे वो 1 मंथ का हो चाहे कितने भी टाइम का हो, तब से लेके 6, 7 और 8 इयर्स तक ये टेस्ट बेस्ट रहेगा। ना ना, जब आप मर्जी ऐसा रख लो। कह रहे हैं, ना ना, बड़ों का, आपका, मेरा भी। बेस्ट तो पर अब देखो। हमने तो उसके ऊपर वर्क किया ही नहीं, तो फिर वो हाँ, तो फिर वेस्ट मैं ही है। मैं वही बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन ना, इंफॉर्मेशन हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में भी इंफॉर्मेशन की स्ट्रगल में है। कई ऐसी चीजें हैं विच आई एक्चुअली आई एम, मैं अभी जान के मुझे फायदा क्या मिलेगा वो बात की बात है, पर मैं जानना चाहता हूँ। वो आया वेदर, मैंने जिंदगी में अपनी सारी, जितने ये आपको राजा महाराजा पहले घर छोड़ के चले जाते थे, वो अपने आप को जानने ही जाते थे, और उसमें उनको सालों लग जाते थे जंगलों में अपने आप को जानने के लिए। और बेस्ट पार्ट है कि ये टूल है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये 5 मिनट का ही काम है, 7 मिनट का ही। राइट, ये बहुत पावरफुल टूल है अगर इसे तरीके से देखा जाए तो। सर अगर एक और क्वेश्चन था, हम्म मे बी वो आप बाद में आके बताएं। जैसे कहते हैं, मैंने ये सुना है कि हर एक इंसान की ना सारी फिंगर्स डिफरेंट होती है, हर एक इंसान की फिंगर्स दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। तो फिंगरप्रिंट्स या जब हम फिंगर? ये, सॉरी, फिंगरप्रिंट्स, हाँ हाँ, तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो वो कंप्यूटर से ही मेरे ख्याल से रिपोर्ट जनरेट होती नहीं, होगी। कम जनरेट तो कंप्यूटर से होगा, बट इसमें मैनुअल असेसमेंट है, और वो मैनुअल असेसमेंट वाला असेसमेंट है, काम अच्छा। एनालिसिस का आप नहीं करोगे। हम्म। एनालिसिस का काम आप नहीं करोगे, वो नहीं सिखा सकते हम आपको, बहुत शॉर्ट स्पैन में। नहीं नहीं नहीं, मीन्स कोई करता है तो वो मैनुअली होती है, मीन्स हाँ, मैनुअली होता कंप्यूटराइज्ड है। है, मैनुअली होता है। ठीक ठीक ही पूछ इसमें कोई ओके। सिस्टम मशीन नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो बाकी उसमें मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ा बहुत इतना किया है कि कुछ काम सिस्टम करता है और कुछ मैनुअल होता है। राइट, ऑफ कोर्स बिना सिस्टम के हो नहीं सकता ये रिपोर्ट जनरेशन एंड ऑल एवरीथिंग। क्लियर? एनी क्वेरी ऑन दिस? वन पॉइंट I'll pick it from प्रियांशु, जितना यंग एज है उसमें उसकी वैल्यू ज्यादा है। बड़े बच्चे के साथ तो मैं क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकता हूँ, साइकोमेट्री भी कर सकता हूँ। अब 4 साल के बच्चे के साथ क्या कर लोगे बताओ? और एक्चुअल में इंफॉर्मेशन का फायदा कब है? जितना जल्दी। ये सुनो, मैंने 16 साल के बच्चे का साइकोमेट्रिक लिया और मुझे उसका पता चल गया कि कोई चीज अच्छी है। अब अगर उसने उसको नर्चर ही नहीं किया तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा है? अब हमने नो, उसको कभी सिखाया ही नहीं, तो 16 साल के बाद जीरो से तो शुरू नहीं करें। पर हाँ, अगर मुझे जल्दी पता चल जाए तो हम उस पर काम कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन पे वी कैन वर्क ऑन। जितने हमारे जितने आप बेस्ट ऑफ कोई भी बंदा उठा लो जिसने किसी भी एरिया में कोई एक्सीलेंस हासिल की, राइट, डांस में, म्यूजिक में, क्रिएटिविटी में, एनीथिंग, फाइन मोटर की कोई, स्कल्पचिंग में, स्केचिंग में, ये जरूर देखना है उनकी हिस्ट्री कि उसने शुरू कब किया। अगर वो इंडिया का बेस्ट है, अगर वो कंपटीशन में बेस्ट है, तो उसने शुरू आजकल में नहीं किया, 16 साल के बाद नहीं किया, उसने शुरू कब किया? स्टडी कर ली। ज्यादातर जो आप देखते हो सिंगर्स भी ज्यादातर कहाँ से निकलते हैं? घरानों से, जिन्होंने बहुत छोटे होते से रियाज शुरू कर दिया। अगर कोई मेरी उम्र में आके म्यूजिक में अपना कदम रखेगा तो वो शायद गाना गा ले कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे, पर वो कंपटीशन में आज ये जो बच्चे पिछले पहले से सीखते आ रहे हैं उनको कभी बीट नहीं कर सकते। ये सुनो, क्योंकि कोई भी चीज है उसे प्रैक्टिस की उतनी जरूरत है जितनी किसी और चीज को, मैथ्स को है, साइंस को है, लैंग्वेजेस को है, उतनी उन चीजों को जरूरत है। तो आप पढ़ना कब शुरू कर देते हो सब्जेक्ट्स को? लिखना कब शुरू कर देते हो? बड़ी अर्ली से। बाकी चीजें नहीं करते शुरू में, उसके लिए हमने टाइम निर्धारित कर रखा है 10वीं के बाद, बोर्ड के बाद देखेंगे बेटा, तुम उस समय कर लेना। ऐसे ही होता है ना। और अगर करते हैं तो रैंडमली कभी कभी, जैसे मैथ्स क्लास रोज की है और म्यूजिक क्लास वीकली है, ऐसे ही है ना। तो क्या हम जितनी नर्चरिंग बाकी चीजों करते हैं इतनी उन चीजों बाकी अपना यूजुअल सब्जेक्ट्स को करते हैं, इनको भी नहीं करते, एक्स्ट्रा करिकुलर को, बिकॉज वी सी इट एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर। पर हमें पता चलेगा तो टाइमली इस पे काम शुरू हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन इज की, और इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और टूल अवेलेबल ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं है जो इनबॉर्न पोटेंशियल को हाईलाइट करे। चेक, कोई नहीं है, सिर्फ एक ही टूल, राइट। इसके अपने फायदे हैं, अपनी लिमिटेशन है, साइकोमेट्री के अपने फायदे, अपनी लिमिटेशन, कंपेरेबल नहीं है दोनों कंपेरेबल नहीं। क्लियर? एनी क्वेरी ऑन दिस? ये जो एवोल्यूशन है मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ये पढ़ लेना।
बहुत पहले से शुरू है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू गिविंग यू नेम्स कि इनको याद कर लो. याद करने वाले नेम नहीं है, मुझे एक ही नाम याद रखने की जरूरत है. वैसे इस पे बहुत लोगों ने किया है काम, राइट? So what is the benefit of doing this at a later stage in life then? कुछ नहीं, अपने आप को जानने के लिए अच्छा है कि मैंने और कुछ नहीं, मैं मिड लाइफ मूवमेंट्स कर सकता हूँ. अगर सपोज कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको कभी भी नर्चर किया जा सकता है, एटलीस्ट पोटेंशियल पता चल रहा है तो यूज करना हो. इफ आई टेल मीनाक्षी दैट यू आर हाईली गुड एट इंटरपर्सनल, योर इंट्रा कनेक्ट इज गुड, थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू करो और ये करो, तुम करियर अपना साइकोलॉजी में बना सकते हो, कोचिंग में बना सकते हो. सो इट्स मिड करियर मूव के लिए बड़ा अच्छा डिसीजन हो सकता है. बट हाँ, पोटेंशियल बताऊंगा मैं. मुझे नहीं पता आपने कितना यूज किया, उसके लिए मुझे साइकोमेट्रिक यूज करना पड़ेगा कि भाई उसको कितना यूज कर चुके, लाइफ किया भी है कि नहीं, राइट? और कई, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जो 80 के साल में आगे कहता जी मेरा टेस्ट करो जी, उसके पोते पड़पोतों को किया तो मेरा भी करो. क्यों? रोटरी के हेड थे नॉर्थ के. शायद मुझे पता तो चले कि मैंने ये जिंदगी में किया क्या है, मैंने सही एरिया में अपना काम किया कि नहीं किया. Just because in that age, everybody is in that question. Either they are in despair or integrity, but they are questioning self whether they have utilized their abilities or not. Am I right or wrong? हमारे में से कई लोग मिड ईयर में आके कहीं फंस जाते हैं कि यार मैं सही दिशा में काम कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इतना जोर लगा दिया, इतना पैशनेटली कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी. यहाँ काम करेगी ये प्रोडक्ट, उनके लिए बहुत अच्छी है ये प्रोडक्ट. कोचिंग के लिए बड़ा अच्छा प्रमाइस बनता है. कोचिंग के लिए आपको एक रेडीमेड असेसमेंट मिल गई. उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा, जो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा, जवाब ही नहीं दे सकते वो, तो उनसे तो आप कोई साइकोमेट्रिक भी नहीं करवा सकते. तो इससे बढ़िया कोई टूल नहीं हो सकता. क्लियर? सर फिंगरप्रिंट लेने के लिए फिर कोई मिलता होगा जिसमें फिंगरप्रिंट सबके लिए? वो आपको बताएंगे कि कैसे है क्या. बिल्कुल मिलता है. ऐप से भी आप मोबाइल से भी ले सकते हो, अपने लैपटॉप से भी ले सकते हो. पर हाँ, एक डिवाइस होगा, स्कैनर बोलते हैं, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक स्कैनर, वो मैं आपको बताऊंगा, आप बाय कर सकते हो. You can start using it. इस प्रोडक्ट में एक चीज, So how psychometric tells us about usage, like वो भी तो अपने को basic nature ही पता चलता है ना. मैं बताता हूँ. साइकोमेट्रिक है, आरजू इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, टेलिंग मी, आई एम आस्किंग आरजू, लाइक आपने उस दिन अपना 4 पीस का उसका डिस्क का एक टेस्ट दिया मैंने आपको, वो साइकोमेट्रिक था. आप बता रहे हो कि आप ऐसे हो या नहीं, राइट? आप बता रहे हो ना अपने बारे में. तो कई चीजें हो सकता है आरजू को भी ना पता हो अपने बारे में. या जब मैं पूछ रहा था आरजू से अपने बारे में, तो आरजू ने कई चीजें ऐसी बताई जो पॉलिटिकली करेक्ट थी, जो एक्चुअल में नहीं यार, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता. सोशली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट, पॉसिबल. So the result based on my response to that test, it's not inborn. ये नहीं, वो इनबॉर्न और एक्वायर्ड दोनों, जो भी करंट हो आप वो बताएगा. वो पोटेंशियल नहीं बता पाएगा. मुझे ये पता चल जाएगा कि आरजू इज वेरी गुड एट म्यूजिक, बट कितना आगे जा सकता है ये नहीं पता. ओके राइट, मुझे नहीं पता कि उसका अच्छा. दूसरी चीज मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका बेस्ट जोन क्या है. अब ये एक चीज, इफ आई आस्क यू, अगर मैं कहूं, मैं अगर अपनी बात करता हूं, आई एम कैपिटलाइजिंग माय करियर बेस्ड ऑन माय इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड माय लैंग्वेज. ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं अपना करियर बिल्ड किया. मतलब मैं अपने करियर में इन 3 चीजों को यूज कर रहा हूँ. माय इंटरपर्सनल कनेक्ट विद पीपल, माय सेल्फ कनेक्ट इंट्रा, राइट, और माय लिंग्विस्टिक स्किल्स. क्योंकि मैं लॉजिक तो नहीं लगा रहा अपने काम में, कोई मैथमेटिकल, कोई साइंस वाइज लॉजिक, इतने बड़े हाईली लॉजिकल काम तो नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना मेरा ना. मेरा काम बहुत ज्यादा क्रिएटिव है ना. अगर आप देखो, बहुत ज्यादा लिखना भी, कोई ड्रॉ करना नहीं है मेरे काम में, कोई कलर्स का कोई काम नहीं है, कोई शेप डिजाइन का काम नहीं है. मेरा काम इज कनेक्टेड टू एम्पैथी, कनेक्टिंग विद पीपल, इंटरपर्सनल, सेल्फ कनेक्ट एंड लॉन्ग लैंग्वेज. ऐसे ही. अब मुझे कैसे पता चले, हाउ कैन आई बी श्योर दैट इट इज ऑल 3 आर माय स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज. हो सकता है ये एवरेज एरियाज हो, पॉसिबल और नॉट. हो सकता है माय स्ट्रेंथ लाइज इन माय क्रिएटिविटी, पर मैंने कभी यूज ही नहीं की, ना मुझे कभी सिखाई गई, ना मैंने कभी यूज की, ना मेरे पास प्लेटफॉर्म है यूज करने का. हो सकता है अर्जुन, के नहीं हो सकता. या पॉसिबल. ये एक्चुअली जो मिड लाइफ क्राइसिस है ना, वो इस कंफ्यूजन के कारण, कि कोई ऐसा एरिया था जो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, मैं तो उसमें बड़ा अच्छा था. अगर मैं कहीं वहां चला जाता तो आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट.
तो मैंने ऐसे ही ये कर लिया, है ना? गेटिंग मी? दिस इज द कंफ्यूजन। सर बच्चों को माँ बाप से लड़वाओगे, आप लोगों ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं, हाँ, बताया ही नहीं। ये लैक ऑफ श्योरिटी है, मतलब श्योर नहीं हूं मैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, मुझे कहा यार काफी हद तक क्लैरिटी देता है कि मैं अभी पोटेंशियल को उस एरिया में काम कर रहा हूँ जहाँ पोटेंशियल है भी कि नहीं, कि मैं अपने एवरेज एरिया को परस्यू करते जा रहा हूँ। क्योंकि एवरेज एरिया को परस्यू करना की जो नेचुरल आउटकम है वो है फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि मैं अपने एवरेज एरिया को परस्यू कर रहा हूँ और मीनाक्षी अपनी स्ट्रेंथ को परस्यू कर रही है। हम दोनों इसी 3 एरिया पे काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, मेरे एवरेज एरिया है। तो इनपुट टू आउटपुट रेशियो किसकी बेटर होगी? ये कम इनपुट देके मेरे बराबर रिजल्ट ले लेंगी या मेरे बराबर इनपुट देके मेरे से बेटर रिजल्ट ले लेंगी? am I right or wrong? कंपटीशन में फ्रस्ट्रेट कौन हो जाएगा? आई एम इक्वली पैशनेट, इक्वली पुटिंग एफर्ट्स, बट आई एम गेटिंग lesser result from her. I'll get frustrated after a span of time, and that is what is happening. कुछ बच्चे ऐसे जो जेई की तैयारी में लगाए हुए हैं नीट के लिए, वो बने ही नहीं उसके लिए, इतना जोर लगा देते हैं वो बच्चे, पर फिर भी स्कोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको एफर्ट करनी पड़ रही है उन चीजों को समझने के लिए, और किसी के लिए वो नेचुरल है। अगर ये दोनों ने बराबर एफर्ट लगाई तो कंपटीशन में सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा हो? बताओ मुझे। जिसको नेचुरल, जिसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है वो। आर यू गेटिंग मी? बस ये मुझे इस चीज में हेल्प करती है कि मेरी नेचुरल एबिलिटीज को, मेरी पोटेंशियल और एप्टीट्यूड को काफी हद तक मुझे क्लियर कर, ये इसका एडवांटेज, राइट? ओके। बड़े के लिए, छोटे के लिए तो बहुत फायदा है। छोटे के लिए तो इनमें एक फ्रेम यूज कर बताऊंगा आपको, वो बहुत पावरफुल फ्रेम है, काफी क्लैरिटी देता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यंग चाइल्ड। क्लियर? ऑल सेट? यस। चलो, इसी के बेसिस पे वी विल बी स्टार्टिंग डिस्कशन टुमारो। टुमारो कल मिल सकते हैं ना? यस सर। यस सर। सेम 7:30? हाँ, अर्ली कर सकते हैं कल, तो हम 7 भी मिल सकते हैं, 6:30 भी मिल सकते हैं। Okay. कल व्हाट आई विल डू, कल आपको पेन पेपर रखना है अपने पास, राइट? और कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा काम करेंगे, राइट? मैंने आपको प्रीमाइस बताई है, आई टेल यू इसके बारे में ना। ये जो टर्म है, मैंने तो आपको साइंस का नाम बताया। ये बिजनेस पता किस नाम से चलता है इंडिया में? DMIT के नाम से। They use the term called DMIT, right? और इतनी एप्रीहेंशन है उसके लिए, मतलब मान के चलो कि जिन लोगों के पास ये काम कर रहे हैं, वो इंडिया में अगर 100 हैं तो 96% पीपल डोंट नो दिस बिजनेस एंड दे आर डूइंग दिस बिजनेस। 96% उन्हें पता ही नहीं कुछ। तोता छाप है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सारे अच्छे हैं, बुरे भी है ना कई, जिनको आता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी, पर हम क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी को तो नहीं कर सकते, है ना? एस्ट्रोलॉजी को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इंडिया में किसी चीज को लेकर। तो इस कारण बहुत दुनिया बैठी है इस समय, उसके कारण ना कई एप्रीहेंशन है इस प्रोडक्ट के लिए। कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और सच में बेवकूफ बना भी रहे हैं कई, ऐसा भी नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं। देयर आर मेनी दोज़ हु आर मेकिंग फूल, क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं है। दे फील लाइक कि सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाली, बता दी, खत्म, लो पैसे दो। इट्स नॉट वैल्यू, इट्स अ नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट, एंड यू विल गेट टू नो। पूरे प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, राइट? प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही डीकोडिंग, अगर कोड गॉड ने कर दिया है हाँ। तो डीकोडिंग तो सीखनी पड़ेगी ना किसी को, और हर एक को तो आती नहीं है, राइट? तो ये आपको 8 दिनों में काफी हद तक डीकोडिंग में हेल्प मिलेगी, हाउ टू डीकोड दीस प्रिंट्स, व्हाट इट स्पीक्स अबाउट एन इंडिविजुअल। जितना आपको पता चलेगा, आपकी अपनी पर्सनल एसेट डेवलप होगी। ये आपकी पर्सनल एसेट, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बन गया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास एक बहुत बड़ा स्किल डेवलप कर लो। ये कोई, मुझे जितने आज तक लोग जानते हैं, मैंने आज तक जिसको समझ आ गई एक बार, मैंने आज तक उसे इस बिजनेस को छोड़ते नहीं देखा। 12 13 साल मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, 12 13 साल से लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि जिसको डिकोड करना आ गया, इससे बड़ी तो स्किल ही कोई नहीं है। बट हाँ, ये कोई 1 महीने वाला काम नहीं है, ये 8 दिन वाला काम नहीं है। इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं 8-8 साल हो गए, वो आज भी सीख रहे हैं। कश्मीरा को काम करते हुए 6-7 साल हो चुके हैं, राइट? वो आज भी इस ट्रेनिंग को अटेंड करेगी, उसके लिए मीनिंगलेस होगा, फिर भी क्यों? उसे पता है each time I'll attend, I'll get some extra value, right? That is why she will attend. उसने मेरे ही प्रोग्राम 2-3 अटेंड किए हुए हैं, फिर भी उसे पता है
कोई नया केस डिस्कस होगा तो न्यू दिस डिकोडिंग विल हैपन। ये सबके साथ है जितने भी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, राइट? बट आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस डिस्कशन। बाकी जो नहीं सुन रहे हैं उनको बोलूंगा रिकॉर्डिंग सुन लें और अगले ये प्रोग्राम अटेंड कर लें, राइट? इट विल बी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, बिकॉज ये कहाँ, ये जो आप कल से आप अपने हाथ ही देखने शुरू कर दोगे, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट? यस सतिंदर। Sir, how much time will it take for us to learn the basics? बेसिक्स तो शुरू आप 8 दिन के बाद भी कर सकते हैं, बेसिक्स तो शुरू कर लोगे, राइट? उसमें सपोर्ट सिस्टम भी होगा, बट इट टेक्स गुड टाइम। इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए 6 महीने लग जाएंगे इसकी, राइट? आप एक देखो, एक आर्ट आपके पास कॉमन है, दैट इज काउंसलिंग, पर डीकोडिंग इज डिफरेंट थिंग। जैसे इसमें हम हेल्प करते कैसे करते हैं कि शुरू में व्हाट वी विल डू, आपने मुझे जब भी आपने काउंसलिंग करनी है तो आपको सपोर्ट भी मिल सकती है इनिशियली काउंसलर की। हमारे जो एग्जिस्टिंग काउंसलर है वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, यू कैन शेयर काउंसलिंग मार्जिन विद देम, 1 पॉइंट। दूसरा, दे कैन हेल्प यू आल्सो। आपने काउंसलिंग करनी है, वो आपको उसके जो इन्फ्रेंसेस बना के दे देंगे रिपोर्ट के, ताकि आपके लिए काउंसलिंग इजी हो जाए। शुरू में डिकोडिंग इजी नहीं होगी तो वो डिकोड करने में हेल्प कर देंगे आपको, बट ग्रेजुअली वंस यू लर्न, तो मुझे लगता है कि ये बस डिकोडिंग की जितना ज्यादा इसमें बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं, आई वोंट से दैट आई एम द ओनली वन हु इज गुड। मुझे करीब हो गए हैं 11-12 साल करते हुए, तो 2010 आई स्टार्टेड, 11 साल तो हो ही गए हैं, 12वां शुरू हो जाएगा। तो आई वोंट से दैट इट्स लाइक मुझे बहुत पता है इसका, बट अभी तक मोर देन 50,000 एनालिसिस हम कर चुके हैं, 50,000 एनालिसिस, 50,000 लोगों की रिपोर्ट्स वी हैव जनरेटेड इन लास्ट 12 years विद माय जितने कलीग्स हैं मेरे, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके ब्रांड्स मैंने एस्टैब्लिश किए, करीब 50,000 से ज्यादा, राइट? और हर साल 10-11 हजार कर देते हैं, और मेरा भी लीस्ट फोकस एरिया में होती है प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट कई और भी हैं एजुकेशन के, तो ये भी एक प्रोडक्ट है, इसमें कई डिस्ट्रीब्यूटर्स काउंसलर्स ऑलरेडी हैं मेरे साथ, बट आई एम श्योर बट यू विल गेट टू सी। मनी बैक गारंटी के साथ सेल करते हैं वैसे। और बताओ कि मींस आपको, मैंने जागृति की एनालिसिस किया और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और जागृति के बारे में जागृति को बता रहा हूँ, और मैंने उन्हें बोला कि अगर आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 50% गलत है, 100% भी नहीं, 50% भी गलत है, I'll pay your money back, even I'll not ask you कि क्या गलत है, ये भी मत बताना, I'll pay your money back। और आप हैरान होंगे, 50,000 एनालिसिस में से आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मनीष ये जो बता रहे हो गलत है, आप पैसे वापस कर दो हमारे। मेरे को नहीं, मेरे कई काउंसलर को नहीं बोला। हाँ, किसी को ये हो सकता है, उसे ये बोला जाओ कि मुझे ना मनीष की काउंसलिंग पसंद नहीं आई, मुझे तो रीना से करवानी है काउंसलिंग। ऐसे मिले हैं लोग, क्योंकि काउंसलिंग एक आर्ट है, वो सबको पसंद समझ भी नहीं आती, ना सबको करनी आती है, धीरे धीरे आप सीखते हो। पर प्रोडक्ट को लेके किसी ने ये नहीं कहा कि जो आप बता रहे हो गलत। हमने कहा ना किसी को दिस चाइल्ड इज एन इंट्रोवर्ट, उसने ये नहीं कहा कि एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी किस्में आप यू कैन फाइंड दिस। हाँ, इसके लिए स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट है इंडिया में। अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे जी नहीं इसमें लोग, जिसका एक्सपीरियंस गलत हुआ तो कहेगा यार नहीं कुछ नहीं है प्रोडक्ट, जिसका एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, दे वैल्यू द प्रोडक्ट, राइट? सो learn it, and if you're already working on it then तो wonderful, if not we'll give you tools and everything how to start with it, but फिलहाल The पहले software forms a very small part of the analysis. After that, like how you interpret it is the big thing, isn't it? The कैसे? decoding. आप कह रहे हैं ना जो वो there is वो बहुत something the छोटा part computer will do, that's a very small part. After मुझे that उसका गेम interpretation सारी is इंटरप्रिटेशन है, गेम इंटरप्रिटेशन है, वैल्यू ही इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इंटरप्रिटेशन की है। मतलब अगर सपोज मैंने एक एनालिसिस मेरे पास है, उसे अगर मैं रेंज ऑफ काउंसलर से उसे काउंसिल करवाऊं, आपको हर बार वैल्यू अच्छी मिलेगी, जितना काउंसलर अच्छा होता जाएगा इसकी डिकोडिंग अच्छी है। एक काउंसलर को मिलाया वो कहेगा ये मिट्टी है प्रोडक्ट, उसने कोई दोबारा टेस्ट नहीं करना, वो कहता है पुराना ही ले आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या है, मैं बताऊंगा इस कोड का मतलब क्या है। तो वो कहता है यार जमीन, वो प्रोडक्ट जमीन आसमान का फर्क हो गया। किस पे? काउंसलिंग पे, डिकोडिंग पे। डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है इसका। उसने तो ये बताना है कि भाई पैटर्न कौन सा है, किस फिंगर पे कौन सा पैटर्न है, ये रिपोर्ट बताती है, और उसका पोटेंशियल की रेंज कितनी है ये बताती है। अब पैटर्न का मतलब क्या है ये तो वही जानता है जो काउंसिल कर रहा है, कि उस पैटर्न का इस फिंगर पे इस पैटर्न का मतलब क्या है, इसकी लाइफ, बंदे की लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा इस पैटर्न का, राइट? वही इसका थोड़ा सा वाव पार्ट है। वाव पार्ट मतलब मैं अगर सपोज किसी की काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं उसे दो चीजें ऐसी बता दूं
क्योंकि यार तुम्हें कैसे पता लगी ये चीज, तुम तक वो मिले ही नहीं मुझे। बस वही उसका वाव पार्ट है। हालांकि हम इसमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं आपको ऐसी चीज बताऊं जिससे आप कहो जी आपने तो मतलब स्टैंप लगा दी, ये तो भाई कमाल कर दिया आपने। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव इज, जैसे मैं नहीं जानता आपके बच्चे को, एंड आई टोल्ड यू दैट योर चाइल्ड इज नॉट गुड एट लॉजिक, राइट, उसके मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में कम आते हैं, ये है वो है, तो आपको भी यार क्या बात है, तुम तो बच्चे से मिले भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला गया? तो वाव तो आपके पास आ गया, बिना क्वेश्चन पूछे मैंने बता दिया। बट एट दिस मोमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम आपको वो बताएं जो आपको ऑलरेडी पता है। आप इसलिए वाव सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता ना, मैंने कैसे बता दिया इस साइंस से। और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लॉजिक को इंप्रूव कैसे किया जाए। आर यू गेटिंग मी? ऑब्जेक्टिव ये बताना नहीं है जो आपको पता है, ऑब्जेक्टिव है हाउ टू इंप्रूव इट। पहले तो हमने वैलिडेट किया जो आप सोच रहे हो वो सही है, अब नाउ वर्क ऑन इंप्रूवमेंट प्लान, रेमेडीज, राइट। और रेमेडीज के लिए हमारी खासियत अब क्या हो गई है कि डीबीएसपी में हमें रेडीमेड रेमेडीज रेडीमेड मिल गई ना, मैं रेमेडीज, इसकी ट्रेनिंग भी है, इसकी ट्रेनिंग भी है, हैंड राइटिंग भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, जिसका जो जरूरत है उसे गाइड कर दिया। क्लियर? ऑल सेट? सर मुझे लग रहा है आधी चीजें तो खुद ही के घर में यूज हो जाएंगी। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, वो निमोनिक्स वाला किसी ने दिया डेमोन्स्ट्रेशन घर पे, मेमोरी वाला? दिया सर, यस दिया। सर। भूल जाओगे आप दिया। कसम से, वो भूल जाना आपने, वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो उसे, भूल जाओगे आप। नहीं सर, रोज हो रहा है यहाँ तो, रोज जादू बच्चे देख रहे हैं और मुझे जादू देख दिखा रहे रहे हैं। चलो ठीक है, राइट। कल मिलते हैं फिर अपन, हम कोशिश करेंगे कल थोड़ा अर्ली रख लें तो जल्दी फ्री हो जाए, राइट? ओके सर। Okay, sir. Thank you. थैंक यू।